हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम मैथ क्लासेस। आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इट इज़ रिलेटेड विद क्लास 11 एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बिफोर रिलेशन एंड फंक्शन वी सी द ऑर्डर पेयर. Order pair means a pair of objects written a specific order is called a pair, order pair. It means suppose you are writing here A comma B, स्पेसिफिक ऑर्डर मीन जिसका कोई मीनिंग होनी चाहिए. ए और बी हमने लिख दिया है, ये एक ऑर्डर पेयर है. पेयर मीन्स टू थिंग शुड बी दैट साइड. तो हमने ए और बी ले लिया. सिमिलरली हम इसको 2, 3 एंड इंक्लूड इन द सर्कुलर ब्रैकेट. तो ये भी आपका जो है ऑर्डर पेयर कहलाएगा. इसको अगर हम यहाँ पर ए लेते हैं, ए इज़ कॉल्ड एज अ फर्स्ट कंपोनेंट. यू विल राइट हियर ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट and B is called as a second component. Second component. Similarly, in order 2, 3 is given, 2 is called as the first component and 3 is called as the second component. Then one thing you will keep in your mind, suppose we are writing x plus 2 comma y is equal to 3 comma minus 1, like this. So first order pair on the left hand side and the second order pair on the right hand side, and both the order pair are equal because is equal to sign is given here. So now here you will see first component x plus 2. In first on the left hand side you will take x plus 2 as a first component, or this first component is equal to the first component of the right hand side. It means x plus 2 is equal to 3, then x is equal to 3 minus 2 and x is equal to 1. Second one, you will put the value of y is equal to minus 1 on the left hand side. Second component you are taking and you will put the second component on the right hand side. It means y is equal to 1. This is the value, and then again you have to find out. Now one second thing is given, equal order pair, equal ordered pair. Already we have to shown कि A or B question you have to take in x plus 2 is equal to 3 and y is equal to minus 1. This is the example of equal order pair. And again suppose you want to take right x minus का 1 comma y plus 5 is equal to, you are writing here 4 comma 5. Sign is equal to, it mean again you will find the value of x minus 1 is equal to 4. then x is equal to जो हम लिखेंगे तो ये 4 plus 1 is equal to ये 5 रहेगा. देन y प्लस 5 अगर आप लिख रहे हैं, यानी यहाँ से हमने सेकंड कंपोनेंट ले लिया है और ये सेकंड कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा. तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 5. इट मीन y इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वल ऑर्डर पेयर का एक एग्जाम्पल था कि इक्वल ऑर्डर पेयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको किस किस तरीके से क्या चीज़ लेना है. लेकिन अगर यहीं पर हम a कॉमा बी वांट टू राइट b कॉमा a, तो यहाँ पर जो हम साइन यूज़ करेंगे दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन रहेगा. अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे. यस, नाउ योर क्वेश्चन इज गिवन, इफ़ एन ऑर्डर पेयर्स a comma minus 1 and 5 comma b belong to x comma y such that y is equal to 2x minus 3, find the values of a and b. Then you will find the solution here. In solution, firstly you are writing y is equal to 2x minus 3.
this is your question is given because here y is equal to 2x minus 3, then this equation passes firstly through a comma minus 1. A comma minus 1, it means this first component is x and the second component you are taking y, and both the values you will substitute here. Y, instead of y you will write here minus 1 is equal to 2a minus 3. Minus 1 plus 3 is equal to 2a, and this implies 2a is equal to 2, then a is equal to 2 upon 2, and your result is 1. It means you found here a is equal to 1. Similarly, you are taking y is equal to 2x minus 3, and this equation passes through 5 comma b. Then here this is x and this is y. Again you will substitute the values. Y, instead of y you are writing b is equal to 2 into 5 minus 3, and b is equal to 5 to the 10 minus 3, then b is equal to 7. With the help of the point and the equation is given here and you found the values of a and b. तो ये आपका क्वेश्चन था. इसके अंदर अगर इस तरीके के पॉइंट हैं और आपको a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो उसका ये प्रोसेस रहेगा फाइंड करने के लिए. यस अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ को चलते हैं और दूसरा हमारा टॉपिक दिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पेयर. फर्स्टली हमने ऑर्डर पेयर देखा, उसका देखना ये भी बहुत ज़रूरी था समझना, क्योंकि इनमें जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें हम यूज़ करेंगे. अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट है टेकिंग द टू सेट, यानी हमने यहाँ पर दो सेट लिए हैं ए और एक एलिमेंट ऑफ ए पी कामा क्यू है. देन बी हैव टेकन द एलिमेंट ऑफ बी 1 2 3. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इसको हम किस तरीके से देखिए क्रिएट करेंगे, कहाँ और कहाँ तक हमें लेना होगा और इसको क्या फाइनल इसकी सिचुएशन होगी. यहाँ पर हमने लिया ए इज गिवन पी एंड ये ले लिया है क्यू, एंड दिस वन इट इज़ गिवन बी. बी के एलिमेंट हमने लिख दिए 1 2 3. ये विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम से हम शो करेंगे. ये पिक्टोरियल फिगर है. तो ये दो सेट हमने बना लिए हैं और इन्हीं दो सेट को हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे. देखिए पूरा हमें कंप्लीट करना होगा. ये ए दिया हुआ है, ये है बी और यहाँ पर पी क्यू ये था 1 2 3. देन P इज़ रिलेटेड, इनका लिंक जो है हमने किससे कर दिया 1 से. P का लिंक 1 से है, फिर P का लिंक 2 से, देन अगेन P लिंक बाई 3, यानी P इज़ रिलेटेड टू 1, देन P इज़ रिलेटेड टू 2 एंड P इज़ रिलेटेड टू 3. जो फर्स्ट कंपोनेंट A का है, क्योंकि हम A to B दिस इंडिकेट वी आर गोइंग टू A to B. तो अगर हम A से B की तरफ को चल रहे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो B से रिलेटेड है. जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे सारा का सारा रिलेटेड रहेगा. P के हमने रिलेशन बना दिए हैं, 1 से कर दिया है, 2 से 3 से, इस तरीके से रिलेट कर दिया है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं, ये P ले लिया हमने, ये Q अगेन दिस इज़ 1 2 एंड 3, दिस वन A एंड दिस वन B. अब देखिए P ऑलरेडी हम यहाँ लिंक कर चुके हैं, Q बचा. अब Q का रिलेशन हम दिखाएंगे. Q इज़ लिंक बाई 1 Q2 देन Q3, यानी P को भी हमने रिलेटेड कर दिया. फर्स्ट फॉर्म हमारी ये हो गई. सेकंड में हमने Q को रिलेटेड किया है. अब फाइनली हम आ रहे हैं और फाइनली जो हमें इसको बनाना पड़ेगा, जो हमें टोटल ऑर्डर पेयर यानी टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ देखिए मैं लास्ट डायग्राम बना रहा हूँ इसका, और विद द हेल्प ऑफ दिस आपको ऑर्डर पेयर भी निकालना है कि किस तरीके से आप ऑर्डर पेयर निकालेंगे. ये रहेगा 1, ये रहेगा 2 और ये है 3. तो पहले P की तरफ चलते हैं. P इज़ रिलेटेड टू 1, P is related to 2 and P is related to 3, यानी P is related to all the element of B. Then again we are going to do like that.
Q is related to 1 and Q is related to 2, देन Q इज़ रिलेटेड टू 3। इट मीन हमें करना क्या था कि पहले हमने P को सारे एलिमेंट से रिलेट किया है, देन Q को भी सारे एलिमेंट सारे B के जो सारे के सारे एलिमेंट थे उनसे हमने रिलेट कर दिया है। और अब इसको हम फाइंड करेंगे यहाँ पर A क्रॉस B, यानी सारे के सारे ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइनली टच देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे P। देखिए P पहले किससे रिलेटेड था, लिंक था P, 1, then again P, 2, then P, 3, यानी P को हमने कंप्लीट कर लिया। और देखिए कितना इजी और कितना इजी वे में अगर आपने किया है विद द हेल्प ऑफ द पिक्टोरियल फिगर, और सारी की सारी चीज़ क्लियर होती जा रही है जो आप लिख रहे हैं कि P, 1, P, 2, P, 3, क्योंकि वहाँ विद द हेल्प ऑफ आयरोग्राम वो इंडिकेट कर रहा है कि P पहले किससे रिलेटेड है और Q किससे रिलेटेड है, P 1 2 3। अब Q की बारी आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा Q, 1, देन Q, 2 एंड Q, 3। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट आ गए। अब अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात करते हैं जो हमारे ऑर्डर पेयर बन चुके हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 हो गए। और इनका प्रोसीजर भी है कि NA क्रॉस B, यानी कॉर्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B शुड बी इक्वल टू NA और इनटू NB। ये हमने लिख लिया। देखिए यहाँ हमने देखा है अगर आप टोटल जो भी आपने ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनाए हैं और उनको अगर आपने काउंट करना शुरू किया है देन इन 1 2 3 4 5 6 हो गए। और अगर विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, अगर आपने ये फार्मूला बिलो में आप देख रहे हैं कि NA क्रॉस B इज इक्वल टू NA क्रॉस NB, तो NA A के एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं और इसके बाद B के एलिमेंट दिए हुए 3, यानी NA इज इक्वल टू 2, दैट इज़ कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो A में आपके 2 हो गए, B में 3 हो गए, और अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल रिज़ल्ट जो आपका मिला है वो आपका रिज़ल्ट हो गया 6। अब इसको डिफ़ाइन किए लेते हैं कि इसकी यहाँ जो हमने इसको शो किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा कि 2 नॉन एम्प्टी सेट A and B, then the set of all the order pair A, B such that A belong to A, B belong to B is called as a Cartesian product of the set A and B and denoted by A क्रॉस B। यानी इसका सिंबल अगर हम यूज़ करेंगे तो ये A क्रॉस B यूज़ करेंगे और A क्रॉस B को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमने एक सेट A लिया है, A इज इक्वल टू 1 2, यानी द एलिमेंट ऑफ A आर 1 2 एंड B 3 4। देन फाइंड फर्स्टली A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको 1 से इसका एलिमेंट 1 3 आएगा तो हम 1 को पहले 3 से लिंक करेंगे, इसके बाद 1 को हम 4 से लिंक करेंगे, यानी पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं और B के दोनों एलिमेंट से लिंक कराना होगा। सिमिलरली 2 3 रहेगा और ये रहेगा 2 4। तो ये हमने ऑर्डर पेयर बना लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद इसका यूँ करके जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये x रहेगा, यहाँ आपका y रहेगा, तो x ये O हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ 1 इसमें 1 है और ये 2 है, यानी 1 2, यहाँ y एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4। पहला रिजल्ट है 1 3, तो 1 पे जाइए, ये 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ पर हम आ गए और इसका ग्राफ हमने यूँ करके, ये पहला पॉइंट हो गया 1 3 आ गया, ये 1 3। सेकेंड 1 पे 1 4 है तो हम यहाँ आ गए और ये वाला हमने पॉइंट बना लिया है, ये कहलाएगा 1 4। इस तरीके से हम पॉइंट ले रहे हैं। देन 2 3, 2 और 3 की बात करेंगे तो हम यहाँ आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, ये रहेगा 2 3 और फिर 2 4 ये वाला पॉइंट रहेगा, इसको इंडिकेट किए लेते हैं तो 2
4। तो ये लैटिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या है, जो आपने 9th और 10th में ग्राफ जैसे हम शो करते हैं, कॉपी उसके पॉइंट लेते हैं, सिमिलरली लैटिस रिप्रेजेंटेशन भी वही है और उसी तरीके से जो हम इसको शो करेंगे। और आज का टॉपिक इतना ही है और अगले वाले टॉपिक में हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब इसके बाद हम रिलेशन और फंक्शन जो है शुरू करें।